Now we will discuss about the beam curved in plan. Beam whose axis is not straight and is curved in elevation is said to be curved beam. Axis is not straight and curved in elevation, that is known as curved beam. Beam curved in plan are used to support the curved floor in building, balconies, curved ramps and halls, circular reservoirs and similar structures. In curved beam, the center of gravity of load acting normal to the plane of the curvature lies outside the joining of the support. In curved beam, there is three moments occur: torsional moment, bending moment and shear force. In a straight beam, only two moments occurs. In straight beams, only two moments occurs: bending moment and shear force. So, to maintain the stability of the beam against overturning, we should always fix the curved beam with fixed support. Okay, we always have to give the curved beam at fixed support. Okay, this is our curved beam, three-dimensional curved beam. This is a section that is known as longitudinal axis, and this is the horizontal plane, that is transverse radial axis, and this is the longitudinal plane, that is longitudinal axis, a point A and this point B. This is any point P. This is our section, and point P is any point over that section. This is usual load, kilonewton per meter. Curved beam, this is radius, this is center, this is 2 theta. This will always called radius of the circle. Curved beam is nothing, that is a particular part of circle. सर्किल है, सपोर्ट गिवन है, तो अगर हमने इस सपोर्ट के बीच का सेक्शन को प्रोवाइड करा है, हमने यहाँ से कट कर लिया और ये सपोर्ट ये दोनों सपोर्ट है, तो इसके बीच का जो ये, तो इसका जो रेडियल डिस्टेंस है वो r होता है. So that is r, or that is also 2 theta. That always be, when we will take from a circular beam, that always be 2 theta. I am showing that in one line plan. So this is our support, that distance is radial distance, radius r, and this is 2 theta, that always be 2 theta. Between two support, the angle will be 2 theta. This is our support, and this is resultant of load. दिस इज सेक्शन, ये सेक्शन है, इस पे हमारा लोड आ रहा है, तो उसका यूडीएल का जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे सेक्शन पे लाई नहीं करेगा, सेक्शन से बाहर लाई करेगा ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द बीम. दैट्स वाई दिस इज सीजी ऑफ लोड ओवर ए बी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लोड ओवर ए बी. ए बी पे जो लोड आ रहा है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस सेक्शन से बाहर होगा. फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, somewhere here will C2. This C for this part, and for this part at any point P on the beam, C will be at here, C2 will be below this curvature, somewhere here C2, CG of the load AP. AP पे जो लोड आ रहा है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ होगा. P इज एनी पर्टिकुलर पॉइंट, कोई भी ऐसा पॉइंट हमने चूज कर लिया, मतलब यहाँ भी चूज कर सकते हैं, यहाँ भी चूज कर सकते हैं. तो ए बी सेक्शन है, उस पर कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट P चूज करा, उस पर बेंडिंग मोमेंट, शियर एंड टॉर्सनल मोमेंट देखेंगे. तो इस पॉइंट से हमने सेंटर से हमने लाइन खींच लिया. सो ये जो एंगल हो गया यहाँ से यहाँ, दैट इज 5. हमने इसे 20 से डिवाइड कर दिया, दिस इज 5/2 एंड 5/2. O dash C equal to R
sin theta divided by theta. Here is some important point for the curved beam. Resultant of UDL lies on the plane away from the curved longitudinal axis. अभी मैंने कहा कि जो रिजल्टेंट UDL का जो हमारा लोड आ रहा है उसका रिजल्टेंट हमारा सेक्शन से अवे होता है, दैट इज दिस काउज बैंडिंग मोमेंट शियर फोर्स एज वेल एज टॉर्सनल. इसके वजह से ही चूँकि कर्व्ड बीम के प्लेन सरफेस से हमारा रिजल्टेंट UDL का नीचे आ रहा है, दिस इज अवर प्लेन, और उससे नीचे आ रहा है जिसके वजह से दिस काउज बैंडिंग मोमेंट शियर फोर्स एज वेल एज टॉर्सनल. मेन टॉर्सन काउज करने का रीज़न यही है कि जो हमारा रिजल्टेंट UDL है वो सेक्शन पे लाई नहीं करता है, सेक्शन से नीचे लाई करता है. दैट्स वाई इट क्रिएट टॉर्सनल मोमेंट इन द सेक्शन. So the direction of transverse axis at any point is the radial. ट्रांसवर्स एक्सिस का जो डायरेक्शन होगा एनी पॉइंट वो रेडियल होगा. बैंडिंग मोमेंट एट पॉइंट P इज द मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस टू वन साइड ऑफ द सेक्शन. P पे जो बैंडिंग मोमेंट होगा वो मोमेंट पूरे सेक्शन पे जो होगा वन साइड इस सेक्शन के वन साइड का जो मोमेंट होगा P पे होगा. टॉर्सनल मोमेंट एट एनी पॉइंट P पे जो टॉर्सनल मोमेंट होगा इज द मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द सेक्शन. लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे जितने भी फोर्सेस के मोमेंट निकलेंगे वो टॉर्सनल मोमेंट एट P पे हो जाएगा. दिस इज द एनालिसिस ऑफ कर्व्ड बीम. कर्व्ड बीम loaded uniformly and support symmetrically. Let us analyze a circular beam continuous over the column which are symmetrically spaced subjected to UDL. This is our circular beam, symmetrically spaced है, मतलब कि जो सपोर्ट हमारा है वो इक्विडिस्टेंस पे है और UDL लाई कर रहा है दिस पर्टिकुलर सेक्शन पे. सो मैंने इस सेक्शन और इस सेक्शन को कंसीडर करा है, दैट इज A एंड B. इस सेक्शन पे जितने मोमेंट आएंगे, जितने शियर फोर्स आएंगे, जितने ट्विस्टिंग मोमेंट आएंगे, टॉर्सनल मोमेंट आएंगे, वही सेम कर्व्ड बीम पे आएंगे. अगर हमने इसका फाइंड कर लिया तो सारे पे सेम पर्टिकुलर फोर्स आएंगे क्योंकि ये सिमेट्री सेक्शन है. सेंटर दिस इज पॉइंट A एंड B. हेयर M cos थीटा मोमेंट हमारा इधर जो डेवलप हो रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने cos थीटा एंड sin थीटा पे, M sin थीटा एंड M cos थीटा, एंड दिस इज मोमेंट MD. ED इक्वल टू OE माइनस OD. ED इक्वल टू R sin थीटा डिवाइडेड बाई थीटा माइनस R cos थीटा. सो लेट CG ऑफ द लोड ओवर आर्क AB का जो CG आएगा एट E पॉइंट पे हमारा रिजल्टेंट ऑफ UDL का जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है वो हमारा यहाँ आ रहा है. ठीक है, तो लेट CG ऑफ द लोड ओवर आर्क AB लाइज एट E. OE इक्वल टू R sin थीटा बाई थीटा. फॉर सपोर्ट रिएक्शन टोटल लोड ओवर AB W इक्वल टू 2WR थीटा. वर्टिकल रिएक्शन एट A इक्वल टू F नॉट से वर्टिकल रिएक्शन एट ए सपोर्ट पे जो सपोर्ट रिएक्शन होगा उसे हम लोग F नॉट से डिनोट करेंगे इक्वल टू 2WR थीटा डिवाइडेड बाई 2. F नॉट इक्वल टू WR थीटा. सेम एट सपोर्ट B, जितने सपोर्ट पे भी रिएक्शन आएंगे वर्टिकल रिएक्शन सेम आएंगे. F नॉट इक्वल टू WR थीटा फॉर ऑल सपोर्ट. हेयर सेम एट A एंड सेम एट B. सेकेंड, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट रिएक्शन के लिए पहले हमने फॉर्मूला देखा, दैट्स फॉर्मूला फॉर ऑल सपोर्ट रिएक्शन. शियर फोर्स एट एंड बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट that's denoted by shear force by F naught and bending moment divided by M naught. For support पे
बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स के लिए, शियर फोर्स के लिए हमने एफ नॉट से डिनोट किया और बेंडिंग मोमेंट सपोर्ट पे एम नॉट से डिनोट करेंगे. शियर फोर्स वी हैव फाउंड आउट, दैट इज एफ नॉट इक्वल टू डब्ल्यू आर थीटा एट सपोर्ट्स. ओनली दिस इज फॉर एट सपोर्ट, not any point on the beam. M naught with the bending moment at each support which is hogging in nature and about the radial axis A naught and B naught shown in the vector radiation, resolving M naught about the A naught into the two components MD. मोमेंट को हमने टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया, MD cos थीटा एंड MD sin थीटा. रिजॉल्विंग M naught about into two components, मोमेंट एम नॉट साइन थीटा अबाउट कॉट ए डी. इस डायरेक्शन में हमने शो किया, ओनली टू एरो शोज दैट एम नॉट कॉस थीटा अबाउट द वर्टिकल एक्सिस इन दिस डायरेक्शन. हमने मोमेंट को टू डायरेक्शन में डिजॉल्व कर दिया. सो बाय इक्वेटिंग ऑल द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला वी गेट बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट. नाउ थर्ड स्टेप, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट P. जो हमने पहले फाइंड किया, ये हमारा सपोर्ट है, दिस इज सपोर्ट एंड दिस इज अवर कर्व्ड बीम. तो हमने जो पहले शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट फाइंड किया, जो हमें फॉर्मूला मिला ये एंड एफ नॉट इक्वल टू डब्ल्यू आर थीटा शियर फोर्स के लिए और ये बेंडिंग मोमेंट के लिए, तो ये दोनों जो फॉर्मूला मिला ये हमारा सपोर्ट के लिए. ओके, These formula for shear force at support and bending moment at support. For any point in this particular section, कहीं भी किसी पॉइंट पे निकालने के लिए, मान लिया जाए ये P पॉइंट पे निकालने के लिए, हम लोग अब एनालिसिस करेंगे कि P पॉइंट पे निकालने के लिए shear force and bending moment क्या फॉर्मूला होगा. ओके, shear force at P F5 से हमने डिनोट किया क्योंकि यहाँ कुछ एंगल होगा. दिस इज O एंड सपोर्ट पे F नॉट से डिनोट किया. क्यों? क्योंकि हमारा ये एंगल जीरो होता है. F सपोर्ट पे हमारा कोई एंगल नहीं हो रहा है, ये एंगल हमारा जीरो हो रहा है, इसलिए हमने सपोर्ट पे F नॉट से डिनोट किया. चूँकि P यहाँ है तो ये कुछ एंगल होगा, इसलिए डिनोट करेंगे F5. किसी भी पॉइंट पे ले रहे हैं, कोई पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट नहीं है कि हमने P किसी एंगल पे ले लिया. ओके, तो फाई की जगह पे जो एंगल पे हमने P रखा है वो एंगल लिखेंगे, इसलिए हमने F5 से शियर फोर्स के लिए डिनोट किया है एट P. F5 इक्वल टू F नॉट माइनस लोड ओवर पार्ट AP. सो वी विल गेट द फॉर्मूला फॉर दैट F5 इक्वल टू WR माइनस थीटा माइनस फाई. This is our formula for shear force at any point P. At phi equal to 0, then if phi equal to 0, अगर phi 0 हो जाता है तो हमारा सपोर्ट का फॉर्मूला हो जाएगा. क्योंकि phi 0 हो गया तो ये वैल्यू 0 हो गया, तो डब्ल्यू आर थीटा, इससे यही फॉर्मूला तो होता था हमारे सपोर्ट पे. एट मिड स्पैन से फॉर 6 सपोर्ट इन विच केस 2 थीटा 60. I am taking here for 6 support because in most of the case you will given for the 6 support in curved beam. So at mid span say for 6 support in which case 2 theta equal to 60 degree. So तो अगर हमारे पास सर्कल है और इसमें 6 सपोर्ट है तो ऑलवेज 2 थीटा इक्वल टू, मैंने क्या बोला कि जो सपोर्ट के बीच में मैं कर्व्ड बीम को एनालाइज कर रही हूँ उसको, वो हमेशा 2 थीटा होता है. तो अगर 6 सपोर्ट है तो 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होता है. बिकॉज हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, 2 थीटा इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई n नंबर ऑफ कॉलम्स, जितना भी कॉलम, 6 सपोर्ट 6 कॉलम, तो 360 डिवाइडेड बाई 6, देन वी गेट 60. सो फॉर 6 कॉलम 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री. So theta equal to, if 2 theta equal to 60 degree, then theta equal to 30 degree, and at mid span phi equal to also 30 degree. So phi and this you can see here, this is our theta and this is our phi. For this case only, जहाँ
थीटा इक्वल टू 30 डिग्री होगा, ये और ये लाइन कॉन्साइड हो जाएगा तो फाई इक्वल टू भी 30 डिग्री हो जाएगा। सो डब्ल्यू आर इक्वल टू 0.53 माइनस 0.53, रेडियन में चेंज कर दिया हमने डिग्री को, तो हमारा मिड स्पैन के लिए फॉर्मूला आ जाएगा 0, दैट इज 0। तो फॉर मिड स्पैन shear force equal to 0. Bending moment at any point P m theta about the P naught. Moment are taken for the section about the radial axis P naught m theta equal to F naught AH minus W phi FG minus m cos theta. So putting these values in the formula, we get this formula for bending moment at any point at that curved beam. किसी भी पॉइंट P पे अगर निकालना हो हमें बेंडिंग मोमेंट, उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। फॉर ट्विस्टिंग मोमेंट, ये हमारा कर्व्ड बीम है, इस तरह से कुछ जाएगा कर्व्ड बीम, हमने उसका प्लेन ले लिया। ओके, दिस इज हॉरिजेंटल प्लेन एंड दिस इज लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। एट हॉरिजेंटल प्लेन मोमेंट अकर, हॉरिजेंटल प्लेन पे मोमेंट डेवलप होता है एंड लॉन्गिट्यूडनल प्लेन पे हमेशा ट्विस्टिंग डेवलप होता है। सो फॉर ट्विस्टिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट P, एनी पॉइंट P पे ट्विस्टिंग मोमेंट के लिए फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा दिस। डेरिवेशन मैं आपको यहाँ पे एलिब्रेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपको कोई ज़रूरत नहीं है डेरिवेशन का, यू नीड ओनली फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग योर न्यूमेरिकल। फॉर मैक्सिमम टॉर्सनल इक्वेशन, this is for only twisting moment at any point P, and this is for maximum torsional equation, maximum twisting moment at any section. This formula will used. Note, if phi equal to 0, twisting moment at support m phi equal to 0. एंगल अगर 0 होता है तो ट्विस्टिंग मोमेंट सपोर्ट पे 0 होगा। For phi equal to 30 degree in case of 6 support, 2 theta equal to 60 degree and theta equal to 30 degree. So mid span पे twisting moment 0 होगा। Important note, at the location of M, the beam defined by the R phi M also lies the section of the contraflexure, that is phi M equal to 0, that is upon the substituting the expression for phi m in the general equation for the bending moment at any point, we get m phi equal to 0. This means that कि जिस सेक्शन पे ट्विस्टिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, तो वो पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर भी होगा। सो जहाँ भी ट्विस्टिंग मोमेंट हाई होगा बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। For design purpose, the equation for support moment m naught and mid span moment mc and the maximum twisting moment mt can be simplified as, here is your formula for support moment m naught, c1 equal to wr square into 2 theta, mid span के लिए moment c2 into wr square into 2 theta, maximum twisting moment के लिए formula c3 into wr square 2 theta. This is our coefficient of bending moment, twisting moment in the circular beam. This C1, C2 and C3 here lies. जितने भी सपोर्ट के लिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो 1, 4, 6, उसके लिए C1, C2, 3, C3 ये सब अलग होंगे, और जो मैक्सिमम जहाँ पे ट्विस्टिंग मोमेंट होगा वो इतने डिग्री पे होगा और इस डिग्री पे बेंडिंग मोमेंट 0 होंगे। जितने सपोर्ट होंगे 2 थीटा का वैल्यू उस पर डिपेंड करता है, और ये किस पे डिपेंड करता है 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सपोर्ट, ये डिवाइड करके ये कॉलम बनाया गया है। ओके, तो आपको ये पर्टिकुलर 6 कॉलम के लिए 6 सपोर्ट के लिए आपको ये डाटा याद कर लेना है, क्योंकि जनरली जो न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड करे जाते हैं वो इसी डाटा से प्रोवाइड करे जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर डाटा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, VBI आप इसे याद करो। दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अ कर्व्ड बीम इज इन द फॉर्म ऑफ फुल कंटिन्यूअस सर्किल इन द प्लेन
with a radius of the 4 meter and supported continuously on the 6 support. The beam carries UDL of 2 kN inclusive of column weight. Determine the bending moment, twisting moment and shear force at the salient location. Salient location means at any location, and plot the bending moment, twisting moment and shear force diagram. So here is given that you have a circular beam which have 6 support, radius of 4 meter, that is 4 meter, number of support equal to 6, so 2 theta equal to 360 divided by 6, so 60 degree is your theta, and 2 theta and theta equal to 30 degree, and radian equal to 0.523 radians. Radius given a 4 meter and UDL 2 kilonewton per meter. Okay, here we have simplified equation for m naught equal to at support, moment at support, moment at mid span and maximum torsional moment. You will find the value from these formulas. M naught equal to 0.089 into 2 into radius equal to 4, so 4 का square 2 into theta radian, theta equal to 2 into theta 0.5236 equal to 298 kilonewton. At support it's developed hogging moment, and at span it developed sagging moment. Moment at span 0.045, that is this is C1, this is C2 and this is C3. Here is the value from the table. For 6 support 2 theta equal to 60 degree, C1 equal to this value and C2 and C3 and 5 equal to means maximum torsional moment अगर होगा 12.75 डिग्री पे. Okay, so this is the values for this simplified equations. shear force at support F naught equal to support के लिए हमने कंसीडर किया था, एनालिसिस में देखा था फॉर्मूला F naught equal to WR थीटा. सो 2 into 4 into 0.5236 equal to F naught shear force at support. F naught denotes support equal to 4.19 kilonewton. Note the above equation give value of moment shear force at specific location at support, midspan, etc. However, in order to draw the bending moment, shear force, torsional moment, we need to use the general equations. ये जो हमारा ऊपर का जो हमने फॉर्मूला यूज किया और ये वैल्यू फाइंड किया, ये स्पेसिफिक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए है, और एनी पॉइंट के लिए हमें वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो हमने एनी पॉइंट एट पी के लिए फॉर्मूला यूज किया था. किसी भी डिग्री पे अगर हम लोग पॉइंट ले रहे हैं तो उस पर शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे जनरल इक्वेशंस का. सो फॉर शियर फोर्स वी हैव distribution of the shear force between AC governed by the general equation. This is AB. किसी भी पॉइंट पे निकालने के लिए हमारा जनरल फॉर्मूला ये हो गया, एंड बेंडिंग मोमेंट के लिए जनरल फॉर्मूला 30 एंड ट्विस्टिंग मोमेंट के लिए जनरल फॉर्मूला 30. अब जिस एंगल के लिए भी हमें फाइंड करना होगा हम एंगल को पुट कर देंगे और वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो दिस इज आवर टेबल. मैंने 0 डिग्री पे निकाला है, 10 डिग्री पे निकाला है, 12 पॉइंट, क्योंकि थीटा इक्वल टू वी हैव 30 डिग्री, तो अप टू 30 डिग्री इस वैल्यू को इंक्लूड करके जितना डिग्री पे हम लोग वैल्यू निकाल सके. ओके, तो दिस टेबल फॉर शियर फोर्स दिस इक्वेशन, एंड दिस टेबल फॉर बेंडिंग मोमेंट दिस इक्वेशन, एंड दिस फॉर ट्विस्टिंग मोमेंट this equation. So we will put one by one. Phi equal to 0 degree, we will put here 0 degree, and we will find the this value. At 0 degree we have 4.19 shear force at support, 4.19. This is shear force at 0 degree means shear force at support. So shear force at support 4.19 kilonewton. And shear force at 10 degree we have this, here is some value,
and value is this. Shear force at 30 degree, 0. Moment at support. So we have find out here moment at support, this value, put it down. Moment at support, moment at 10 degree, we will put the value. Moment at support 2.98 kilonewton. Here is 2.98 at the support, 2.98 at the support, and this is point of counterflexure. दिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 है एंड एट दिस पॉइंट पे ट्विस्टिंग मोमेंट मैक्सिमम है, दिस पॉइंट पे ट्विस्टिंग मोमेंट मैक्सिमम है. सेम 12 डिग्री अगर यहाँ पे पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्शन आ रहा है तो हमने 60 डिग्री के लिए करा है, तो 60 डिग्री से भी हम लोग इधर 12.75 डिग्री जाएंगे तो 47.25 आएगा. तो इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्शन आएगा इस साइड से, क्योंकि 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्रीज है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 30 तक अप टू 30 तक डिवाइड कर लिया. देयर आफ्टर मिरर इमेज की तरह हमने सेम वैल्यू को इधर भी पुट कर दिया. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द कर्व्ड बीम and plotting the shear force and bending moment and twisting moment diagram